Hello everyone and welcome to the SBI Securities Weekly Wrap podcast. So first, let's discuss how the markets have been in the week gone by. इस सप्ताह इंडियन इक्विटी मार्केट्स में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली है. दिस वॉज ड्यू टू weak global market cues as rising tensions in Middle East jeopardize global market sentiments. ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए जहां BSE मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस performed slightly better than the benchmarks, where it declined by 3.2% and 2% respectively week on week. Brent crude की बात की जाए इस सप्ताह Brent crude में 10% की बढ़ोतरी देखने मिली है due to geopolitical tensions, which was further fueled by US President's remarks on Israel considering attack on Iran's oil reserves. On the economic data front, US service PMI rose to 54.9 in September 24, higher than the forecast of 51.7. US private payrolls increased by 1,43,000 jobs in September 24, higher than the forecast of 1,40,000 jobs. India's manufacturing PMI fell to 56.5 in September 24 from 57.5 in August 24. The 8 core industries growth contracted 1.8% in August 24, led by contraction in coal, crude oil, natural gas, cement, electricity and petroleum refinery products. FIs की बात की जाए इस सप्ताह FIs ने अग्रेसिवली अपने स्टॉक्स ऑफलोड किए हैं टू द ट्यून ऑफ ₹30,484 crores. This was likely due to risk of trade and shifting of money within emerging markets from India to China, led by cheaper valuations and unleashing of stimulus measures by the Chinese government. Ahead of 2Q FY25 result season, a couple of banks and FMCG companies have come out with their quarterly provisional business updates during the week. तो अगर बैंक्स की बात की जाए तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों की मिक्स्ड परफॉर्मेंस रही थी. CSB बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक ने रोबस्ट ग्रोथ इन एडवांसेस रिपोर्ट की है, whereas HDFC's बैंक ग्रोथ इन एडवांसेस वाज म्यूटेड. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की जाए जहां बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्ट्रॉन्ग लोन बुक ग्रोथ ऑफ 5% QOQ पोस्ट किया है, वाइल यूको बैंक एंड PNB ने 3% QOQ ग्रोथ की है. NBFC सेक्टर की बात की जाए जहां बजाज फाइनेंस एंड इट्स हाउसिंग फाइनेंस आर्म दोनों ने हेल्दी लोन बुक ग्रोथ ऑफ 29% एंड 26% विटनेस की है. However, they were still below the street expectations. अब चलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जहां कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सॉलिड क्वार्टरली एडवांसेस ग्रोथ ऑफ 5% QOQ इम्प्रूवमेंट दिखाई है, whereas सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी हेल्दी लोन बुक ग्रोथ रिपोर्ट की है, बट देयर वाज एन इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यूरिंग द क्वार्टर. FMCG सेक्टर की बात की जाए जहां डाबर के प्रोविजनल अपडेट्स काफ़ी वीक रहे because उसके डोमेस्टिक रेवेन्यूज are expected to decline by mid-single digit due to high inventory levels in general trade segment, heavy rains and flood across the part of the country, especially impacting the beverages segment. Marico की बात की जाए जहां उसकी consolidated revenue high single digit से ग्रो हुई है and V-Mart Retail's revenue ने भी काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ की है ऑफ 24% YOY विद SSSG ऑफ 15%. अब चलते हैं ऑटो कंपनीज के सितंबर मंथ सेल्स ऑटो सेल्स नंबर्स पे जहां PVs ने दे हैव कंटिन्यू टू रिमेन इन स्लो लेन. हालांकि M&M ने आउट परफॉर्म किया है ये सेगमेंट में. टू व्हीलर्स की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी रोबस्ट डबल डिजिट ग्रोथ कंट्रीब्यूट की है both from domestic and export market. CV volumes की बात की जाए तो they were impacted due to heavy rains, whereas domestic tractors में recovery देखने मिली है. अब next week इन सारे इवेंट्स पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पे फर्स्ट है FOMC September month meeting minutes. This will also, alongside a couple of Fed officials are also going to give speech which will be tracked by the global market participants to assess the interest rate cut outlook. US अपना CPI and PPI figures for the month of September 24 भी रिलीज करेगा. In India, RBI will decide on its interest rate policy on 9th October 2024. With uncertainty in the markets,
इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस दी जाएगी कि वो क्वालिटी स्टॉक्स को प्रेफर करें फ्रॉम द सेक्टर्स लाइक ऑटो, ज्वेलरी, NBFCs, रेलवे वैगन्स, प्राइवेट बैंक्स, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म हॉराइजन। अब कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की बात की जाए, जहाँ फर्स्ट है टाटा पावर। ये कंपनी करीब 1.2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगी इन राजस्थान फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड ग्रीन ट्रांजिशन। वेल्सपन एंटरप्राइज, ये कंपनी डिक्लेयर किया गया है एज अ L1 बिडर बाय द BMC फॉर द मुंबई वाटर टनल प्रोजेक्ट वर्थ ₹1990 करोड़। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ने 40:60 JV विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्ट सपोर्ट फॉर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यूज इन इंडिया की अनुमति दे दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस कंपनी ने महिंद्रा ZDO 4W SCW स्टार्टिंग फ्रॉम 7.52 lakhs लॉन्च किया है। अब बात करते हैं ऑर्डर इनफ्लोज की, जहां कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ने करीब 1241 करोड़ की ऑर्डर विन की है। वेल्सपन कॉर्प ने करीब 2400 की ऑर्डर विन की है फ्रॉम इंटरनेशनल एंटिटी USA। ITD सीमेंटेशन ने भी एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर हासिल किया है टू द ट्यून ऑफ ₹1937 करोड़। एंड अशोका बिल्डकॉन ने भी काफ़ी एक अच्छा ऑर्डर विन किया है टू द ट्यून ऑफ ₹1738 करोड़। अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे, जो हमारा प्रोडक्ट है, जहां हमने 2 बाय कॉल्स दी है। सो फर्स्ट है ओलेट्रा ग्रीन टेक at a CMP of ₹1715 with a price target of ₹1972.3। और दूसरी पिक है हमारी पराग मिल्क फूड्स एट अ CMP of ₹205 with a price target of ₹230। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा पिक ऑफ द वीक है, जहां हमने MCX की बाय रिकमेंडेशन दी है एट अ प्राइस ऑफ ₹5864 with a price target of ₹6743.6। For key corporate actions in the next week, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. So this was all about the weekly market podcast. Thank you for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.